Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. First of all, thanks a lot for the overwhelming response for yesterday's live. लाइव स्टूडेंट्स ज्यादा तो नहीं थे लेकिन जो व्यूज एंड कमेंट्स एंड थैंक यूज मुझे मिले हैं उसके लिए आई एम completely indebted to you people. So here I am after completion of the unit language and linguistics. I am here with the unit poetry, and as you can see on the screen behind me, today I am going to take up the most expected questions that are bound to come in the upcoming Haryana Public Service Commission subject knowledge test in the subject English. So let us get into the video. The questions are 6 in number, but mind you, they are very important as far as the exam is concerned, because poets have written so many poetries, and if we look at the syllabus of poetry of this unit, we will see that there is no single poet and one single poem prescribed. No, even there are 2 to 3 poems of a single poet. So what you have to do here is I will talk to you about this also कि कैसे पोएट्री के सेक्शन को हम क्लब कर सकते हैं, कैसे एक ही पोएट की डाइवर्स पोएट्रीज को हम क्लब कर सकते हैं और कैसे अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं. So these questions, mind you, are very important. I'm not talking in air. I am talking from a very authentic point of view. I have well researched the HPSC previous year questions. I have well researched the syllabi prescribed in the state universities of Haryana. So when I'm speaking, I have a substance. So let us get into the video. I will start the PDF here, and with that you will get to know the questions. So the most expected questions for the unit poetry will be here right in front of you. So the very first question is, what is a mock epic? Justify the rape of the lock as mock एपिक. माइंड यू, जब बात पोएट्री की होती है तो बात यहाँ पर होनी चाहिए पोएट्री के स्टाइल की, स्टाइलिस्टिक फीचर्स की, किस तरीके से पोएम को बनाया गया है. तो मॉक एपिक की डेफिनेशन मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ. मेक श्योर यू नोट इट डाउन. मॉक एपिक, dramatic monologue, style of sonnet. इन्हें आप जरूर से जरूर 2 to 3 लाइंस में प्रिपेयर कर लीजिए कि मॉक एपिक क्या होता है. Try to know the characteristics, try to know the features of mock epic, dramatic monologue and sonnet style. किस तरीके की राइटिंग्स हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, एपिकल राइटिंग्स के फीचर्स क्या होते हैं. मॉक एपिक, as you know, is made up of from the combination of 2 words, mock and epic. On one hand, you are mocking at somebody, you are mocking at any issue, you are mocking at any topic, whereas epic is another a very respectful style of writing that is lengthy in style. There are nymphs, there are divine interventions also. So this poem, The Rape of the Lock, is one of the finest examples of mock epic. Mind you, there is difference between mock heroic and mock epic. Mock heroic is you take up the heroic subject and you mock about it, whereas mock epic is, it is indeed heroic, it mocks, but it is epical in length, as Alexander Pope, The Rape of the Lock is. Whereas the poem Dryden's Macflecknoe, Dryden's Absalom and Achitophel, they are basically mock heroic poems, and now here we are with a mock epical style. So you cannot miss on mentioning what is mock epic, you cannot miss on highlighting the mock features, the cutting of the lock of the hair and making it such an epical issue, such a heroic issue. Whereas epical is the length, epical is the divine intervention, epical is the usage of nymphs, sylphs,
whatever Pope has used to make its poem mock heroic. So mock पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि mock epic क्या है, तो mock epic का पता होना यहाँ पर बहुत जरूरी है. विद मैं आप एक यहाँ पर एक हिंट ड्रॉप करना चाहूंगी जी. एलेक्जेंडर की पोम द रेप ऑफ द लॉक के आप इसी क्वेश्चन को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो. सिंस इफ यू गो बाय द टेक्स्ट ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इट इज वेरी लेंथी, एंड अगर इन क्वेश्चंस को नहीं किया है माइंड यू अप कर लो. यू हैव 15 days to go and these are the canonical text जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है. So the next question is right here in front of you. What is the metaphysical conceit in the poems of John Donne? Elucidate using the flea, a valediction forbidding morning, the eschatasy, and the good morrow. This the direct question has not been asked in HPSC 2022 exam. Rather, have altered the question because the question was there on John Donne's poetry, "Death Be Not प्राउड", उस पर क्वेश्चन था. लेकिन यहाँ पर जो मैं चीज बताना चाहती हूँ, जो मैंने मॉक हेरोइक के लिए भी बताई है, वो चीज क्या है? मेटाफिजिकल कंसीट. मेक श्योर यू नो द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. दैट इज द कार्पेडियम फिलॉसफी, दैट इज द एनालॉजी और द फार फेच्ड कंसीट्स दैट आर यूज्ड बाय मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिक टर्म किसने दिया है? मेटाफिजिक के फेवर में किसने बोला है? Against किसने बोला है? How Dryden and Johnson, they were associated, Dr. Johnson, they were associated with the metaphysical school of poetry. Make sure everything is there in the back of your mind when you are writing it, because as you know that Andrew Marvell is there, John Donne is there, George Herbert is there. So you must know what you must know, that all are guided by the philosophy of Carpe Diem. Carpe Diem philosophy. Carpe diem philosophy is seize the day, make the most out of the day. Whatever you have today, this is it, and there is no future. There is nothing going to be beyond this day. So this is seize the day philosophy. So metaphysical conceit. अब जो questions की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, अगर आपने practice कर लिए हैं well and good, तो आप इस वीडियो को एक warning की तरह ले सकते हैं, guidance की तरह ले सकते हैं कि इसको आपने practice करते रहना है. MDU के सिलेबस में, KU के सिलेबस में, HPSC के PYQs को उठा करके देखते हैं तो मेटाफिजिकल कंसीट बहुत जरूरी है समझना. मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री का मॉक हीरोइक पोएट्री को भी समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो विद दैट लेट अस कम टू द वेरी थर्ड क्वेश्चन. एलियट हमारे फेवरेट राइटर हैं. एलियट का वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock. HPSC 2023 should better be titled Prufrock among the women. ये क्या कहना चाहते हैं? जब आप द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock पढ़ते हैं तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक हमारी रोमांटिक पोएट्री नहीं है, ये एक लव सॉन्ग नहीं है, ये एक फ्रेगमेंटेशन है इमोशंस का, जहां पर एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज सिटिंग अमंग वुमेन. ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम व्हेन ही विल प्रपोज हिज लेडी. द टाइम इज कंपेयर टू एनेस्थीसिया. यहाँ पर स्टेराइल लाइफ है, मॉडर्न लाइफ है. जो भी वोकैबुलरी मैंने आप लोगों को वेस्टलैंड के लिए दी है वो वाइसा वर्सा यूज की जा सकती है J. Alfred Prufrock के लिए भी. Am I right when I say this? And if you like the way I'm handling the topics, I'm handling the HPSC exam, please do share this channel, please do like, comment and spread the word. I'm saying this over and over. Dear, let us grow together. I will teach you. I want you people, I want my students, the people who are commenting, the people who are in touch with me, the people who are connecting to me, the people of the offline batch. I request each one of you, let us grow together. इस चैनल की ग्रोथ HPSC के बाद रुकनी नहीं है, बिकॉज हम नेट की जर्नी को भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. टारगेट नेट दिसंबर 2025. सो यहाँ पर हमारा बहुत जरूरी हो जाता है इस क्वेश्चन को समझना कि हमें बैकग्राउंड नॉलेज, पोएट्री के स्टाइलिस्टिक फीचर्स की बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, T.S. Eliot का हो गया, हमारा J. Alfred Prufrock हो गया. Prufrock among the women because he is sitting among the group of the ladies and he is observing them how these ladies are reacting. They are very much concerned about painters, and that gives chills in the spine of Prufrock. Why? Because he thinks, because he is
unable, yeah, he is less capable of proposing, of giving her, of lending proposal to that lady. Next question, master question जरूर से जरूर आने वाला है जी. Write a note on the construction of the heroic stature of Saturn in Paradise Lost. And people who are saying कि आप हिंदी में पढ़ाइए, आपकी ऑडियंस हिंदी की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश का है. जी हाँ, मैं मानती हूँ मेरी ऑडियंस हिंदी की है, हिंदी स्पीकर्स हैं, बाइलिंगुअल्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज जिस एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ मैं इन पीवाईक्यूज को टेकअप कर रही हूँ, उसी एंथुजियाज्म के साथ पेन चलने चाहिए, और उसी एंथुजियाज्म के साथ मैं इन आंसर्स को मॉक टेस्ट डिक्लेयर करती हूँ. घर पर बैठिए, मॉक टेस्ट दीजिए, इन 6 क्वेश्चंस में से जरूर क्वेश्चन आएगा, और तब नेहा मैम को थैंक करने के लिए कमेंट फिर से जरूर कीजिएगा. So write a note on the construction of the heroic stature of Saturn in Paradise Lost. जी क्वेश्चन आएगा, सैटर्न की हीरोइक कैपेबिलिटीज पर आएगा, सैटर्न की हीरोइक क्वालिटीज पर आएगा, कि उसे सैटर्न यहाँ पर सैटर्न, मिल्टन इज ऑफ डेविल्स पार्टी किसने कहा है? कोट है, कोट की जा सकती है जी. मिल्टन, विलियम ब्लेक ने कहा है कि मिल्टन इज ऑफ सैटन्स पार्टी. मिल्टन गॉड की साइड ना होकर के सैटर्न की साइड लग रहे हैं, ऑल थैंक्स टू द आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज एंड आर्टिस्टिक पेन ऑफ जॉन मिल्टन, दैट ही इज टेकिंग अप सच अ ग्रैंड सब्जेक्ट. और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, इन्वोकेशन टू म्यूजेस, बिकॉज ही इज टेकिंग सच अ ग्रैंड सब्जेक्ट एंड ही इज गोइंग टू डिफाइन or describe or portray a devil, and that is why he is seeking the help of the invocation. He is invoking to the muses. अब भाई एक काम कीजिएगा, बुक 1 हमारे एचपीएससी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, बट कहना चाहूंगी एक बार नेट के लिए 12 की 12 बुक्स का ओवरव्यू लिया था, यहाँ पर भी ओवरव्यू ले लेना. यहाँ पर इंटरटेक्चुअल आप डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में जिस तरीके से सैटर्न को टेकअप किया गया है, वहां पर उतना ही ग्रैंड रोल ल्यूसीफर को दिया या फिर मेफिस्टोफेलिस को दिया गया है. एम आई राइट व्हेन आई से दिस थिंग? तो इंटरटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर फॉस्टर्स भी जरूर से जरूर आने के चांसेस हैं. अगर आप चाहते हैं इस तरीके की पीवाईक्यू वीडियोस टिल द लास्ट चलती रहे, तो यू कमेंट सेक्शन is but open for you. So Paradise Lost का Saturn वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर कर जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से टेक्निक पर आ गया है. व्हाट इज, ये एमडीयू में बार बार पूछा गया है. दिस पोएम इज प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ एमडीयू. व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? हाउ डज ब्राउनिंग यूज ड्रामेटिक मोनोलॉग इन माय लास्ट डचेस टू रिवील द ड्यूक्स कैरेक्टर एंड एक्सप्लोर थीम्स ऑफ पावर, कंट्रोल एंड जेलसी. अब यहाँ पर मुझे एम्फोसिस किस पर देना है? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से माय लास्ट डचेस की टेक्सचुअल एनालिसिस कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, मॉक हीरोइक, और यहाँ पर हमारा एपिकल स्टाइल, सोनेट का स्टाइल, मेटाफिजिकल स्टाइल, स्टाइलिस्टिक फीचर्स को गिव अप मत करना. मैंने इंटरटेक्चुअल पर फोकस किया है, मैंने उसके साथ फोकस किया है, कोटेशंस पर किया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर किया है, लेकिन आज मैं यहाँ पर स्टाइलिस्टिक स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहती हूँ. आई हैव डेलिबरेटली पिक्ड अप दोज क्वेश्चन जो कि दे डिमांड सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है उसके रिस्पेक्ट में ही आप समझ सकते हैं इस पोम को, द माय लास्ट डचेस. सो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर मैं समरीज नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्वेश्चंस को. 6th क्वेश्चन इज, अब हम थोड़ा इंडियन लिटरेचर पर आ जाते हैं. हाउ डज गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस यूज सटायर टू एक्सप्लोर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी इश्यूज, इंग्लिश इन इंडिया? मैकॉले लेकर के आए इंग्लिश को इंडिया में अपने मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द ईयर 1835. तो अब यहाँ पर एक बाबू इंग्लिश का एग्जाम्पल बन जाती है ये, और मेरे मॉक टेस्ट के स्टूडेंट्स व्हेन दे आर मेंशनिंग बाबू इंग्लिश, व्हेन दे आर मेंशनिंग दिस थिंग, आई टेल यू आई फील सो प्राउड दैट आई हैव टेकन सच चिल्ड्रन जो जानते हैं कि बाबू इंग्लिश का एग्जाम्पल है ये. वहां पर क्लर्क्स हैं, दे आर गिविंग गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा, एंड व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश? एक थी बटलर इंग्लिश और एक थी बाबू इंग्लिश. बाबू इंग्लिश बंगाल के
क्लरिकल लेवल के जो पीपल थे, दे यूज टू स्पीक दैट इंग्लिश, दे ट्राई टू स्पीक दैट इंग्लिश. इट इज अ फेयरवेल पार्टी दैट इज गोइंग ऑन, बट इट इज more of like the show off of the English language that these people basically know. It's in post colonial India. तो ये भी बहुत ज्यादा important हो जाता है. Now next question is another very important question, that is Ezekiel use of irony and cultural observation in Night of the Scorpion. To be MDU 2015, when I was a student there, this question was there. तो Night of the Scorpion को फेथ के कॉन्टेक्स्ट में, सुपरस्टिशन के कॉन्सेप्ट पे और रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट से जरूर पढ़कर जानी है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बट आपको पता है नेहा मैम बोनस दिए बिना नहीं मानती हैं, तो आज का बोनस ये देख लीजिए. आज का बोनस ये है, कोर फोकस इनके अलावा इन पर रहना चाहिए. द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट, यूट्यूब पर हमारा वीडियो अवेलेबल है. डोवर बीच के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं बाय मैथ्यू आर्नल्ड. और रोमांटिक पोएम्स, टिंटन एबे, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर, ओड टू वेस्टर्न, इनकी कोलैबोरेटिव स्टडी जरूर कीजिएगा. रोमांटिक आइडियल्स की स्टडी जरूर करके जाइएगा. वेस्टलैंड और प्रूफ्रॉक को मॉडर्न लेमेंटेशन, मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट से जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि मॉडर्निज्म की पोम है, मॉडर्न एज की पोम्स है. वेयर एज रोमांटिक एज की पोइट्री को एक कोलैबोरेटिव स्टडी, एक रोमांटिक पेज, रोमांटिक राइटिंग का नेचर का जो डीलिंग था, वर्ड्सवर्थ का, कॉलरिज का, उसकी कंपेयर एंड कंट्रास्टिव स्टडी भी जरूर करके जाइएगा. वेस्टलैंड को मत छोड़ना, डोवर बीच को, विक्टोरियन आइडियल्स को. अब विक्टोरियन एज के और रोमांटिक एज के आइडियल्स अगर नहीं बना रखे हैं तो एक पेज आज और कल में बना लीजिए. टुडे इज 2 अगस्त, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब हमें अपने आइडिया को स्ट्रीमलाइन करना है. The more the mind will work, the more the pen will work. You should start scribbling your pen right now. अपना एक पेन का बॉक्स खरीद करके ले आइए, उसी पेन से लिखना शुरू कीजिए और लास्ट मोमेंट तक उसी पेन को ही लेकर जाना है. Your pen should know that what to write next along with your mind. With that, I come to the end of this video, but not to the end of this series. I wish you all the very best, since we have entered the very most awaited month of the year, August. Thank you.